اتنی سی قربت پر تمہاری چیخیں نکل گئی، تمہارے حاملہ ہونے تک تمہیں نہیں بخشوں گا، اس کمسن وجود سے بچہ پیدا کروں گا۔ اس 15 سالہ بچی کو زبردستی جہان کے پلو سے باندھا گیا، جو ابھی شادی کے تقاضوں سے واقف ہی نہیں تھی۔ جہان بھائی، یہ کیا بے شرمی ہے، پلیز ایسا مت کریں، میں بابا جانی کو بتاؤں گی۔ جہان نے اس کے اتنا مچلنے پر اپنا بھاری وجود اس کی مہناز کمرے میں ٹہلتی ہوئی جہان کا انتظار کر رہی تھی، بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 12 بج چکے تھے اور اسے بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ نیند کی شدت سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو جہان نے آ کر جو اس کا حشر کرنا تھا اسے وہ خود بھی واقف تھی۔ اس وجہ سے وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جہان کو کال کرنے لگی، لیکن وہ کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ جب اچانک ہی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو وہ بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے ہی جہان کھڑا ہوا تھا، نشے کی حالت میں۔ اس کی آنکھیں لال انگار ہو رہی تھیں اور خونخوار نگاہوں سے مہناز کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ گھبرائے ہوئے کہنے لگی، سوری جہان، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جہان نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم نے کبھی میری فرمانبرداری بھی کی ہے؟ نہ جانے کب تم میری زندگی سے نکلو گی اور مجھے چین ملے گا۔ یہ کہہ کر اس کے جبڑے کو دبوچ چکا تھا اور آج پہلی دفعہ مہناز کو اس پر غصہ آیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، جہان، آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ میں تنگ آ چکی ہوں آپ کی اس رویے سے، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر جہان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور رہنے کا؟ بتاؤ، کس کے عشق میں مبتلا ہو آج کل تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ وہ غصے میں اس کے بالوں سے دبوچتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے، نفی میں ساری لاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں جہان، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی مار پیٹ سے، آپ کی دی گئی اذیت اور تکلیفوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ اگلے ہی لمحے جہان پر جنون سوار ہو چکا تھا اور اس وقت مہناز کو احساس ہوا تھا کہ یہ کہہ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ ایک تو وہ نشے کی حالت میں تھا، اوپر سے وہ مکمل طور پر غصے میں آ چکا تھا۔ مہناز کہنے لگی، جہان، اچھا جہان، ریلیکس ہو جاؤ، تم سو جاؤ، تم بہت زیادہ تھک گئی ہوگی۔ وہ نارمل انداز میں بولی جا رہی تھی۔ جہان کے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے چکا تھا، کہنے لگا، آج مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا گلا دبانے لگ گیا۔ اس نے فوراً ہی جہان کو خود سے دور دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونجنے لگ گیا تھا اور جہان اس وقت مکمل طور پر جانور بنا ہوا تھا، اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی چیخ خوف کی آواز سن کر حویلی والے بھی اٹھ چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ذیشان صاحب جلدی سے دروازے کی طرف گئے۔ پیچھے سے شبانہ بیگم بھی آ چکی تھی۔ ذیشان صاحب دروازے پر دستک دیتے کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جہان، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں بچی پر ظلم کر رہے ہو؟ وہ مر جائے گی۔ مسلسل اس کی چیخوں کی آواز سے گونج رہے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی، انکل، خدا کے لیے مجھے اس درندے سے بچائیں۔ لیکن جہان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی زندگی ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شبانہ بیگم دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہنے لگی، جہان بیٹا، خدا کے لیے اس بچی پر رحم کرو، اس بچی کو چھوڑ دو۔ پیچھے سے باقی سب لوگ بھی آ چکے تھے۔ ساری حویلی والے اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔
पिलर के पीछे खड़ी हुई थी, सबको घबराते हुए देखे जा रही थी। इसकी आंखें फैल चुकी थी। हमेशा ही इसने ये चीखते चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। इसने हमेशा इस हवेली के मर्दों को अपनी बीवियों पर जुल्म करते देखा, जिसकी वजह से वो घबराते हुए पिलर के पीछे छुपी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जहान गुस्से में कमरे से बाहर चला गया था। उसने किसी से कोई बात नहीं सुनी थी। जैसे ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए थे तो बिल्कुल खामोशी आ चुकी थी। हंसा घबराते हुए धीरे धीरे चलती हुई इस कमरे तक आई, लेकिन फर्श के दरमियान देखते ही इसकी आंखें फैल चुकी थी। वो होंठों की तरह इस बेजान वजूद को देखे जा रही थी, जिसके गिर्द फर्श लाल हो रहा था। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। वो न समझती हुई, नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, लेकिन इसके दिमाग में बैठ चुका था। वलीद साहब ने जब अपनी बेटी को देखा तो जल्दी से खनसा की तरफ आए और इसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर चले गए। उसने निगाहें उठाकर अपने बाप की तरफ देखा और कहने लगी, बाबा जानी, मैं नाज़ाबी को क्या हुआ है? वो घबराते हुए पूछे जा रही थी। वो अपनी बेटी को उठाए इसके कमरे में लेकर आए और कहने लगे, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इस बारे में किसी से भी तुम जिक्र नहीं करना। खनसा को बहुत मोहब्बत और प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे। खनसा ने इस बात में सारे हिला दी और कहने लगी, पापा जानी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन जहान भाई ने आप ही को मारा है ना? उन्होंने कितना ज्यादा आप ही को मारा है। ऐसा तो आप ही मर जाएंगी। उनका कितना ज्यादा खून बह रहा था। बड़े होते हुए अपने बाबा की तरफ देखते हुए बोले जा रही थी। वलीद साहब जानते थे उनकी बेटी किस कदर कमज़ोर दिल की मालिक है। इस वजह से वो कहने लगे, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसे कहा, जाओ तुम सो जाओ। ये कहकर उसे बेड पर लिटाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर आ चुके थे। बाहर जाते ही उन्होंने ज़ीशान साहब की तरफ देखा और कहने लगे, देखें भाई साहब, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि जहान ने इस लड़की की जान ली है। आपको मालूम है कि अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो फिर ख़ानदान की कितनी बड़ी बदनामी होगी। मैं आपको पहले ही कहता था कि इस लड़की को जहान की ज़िंदगी से निकाल दो, वो इसके साथ कुछ कर देगा। आज आपने अंजाम देख लिया है। अब इस लड़की के घर वालों को क्या जवाब देंगे? वो नरमी से बोले जा रहे थे। ज़ीशान साहब कहने लगे, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। घर की औरतें बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। जो हालत इसकी जहान ने की थी, उस वक्त सभी को जान से नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन घर के सारे अंदाज में थे, जैसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके बेटे ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, बल्कि वो इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को मालूम ना हो। उस 10 साल की खनसा के दिमाग में ये सारी बातें बैठ चुकी थी। उसे अब सारे मर्दों से ही बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया था। जो कुछ उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, ये चीज़ उसे खौफ में मुब्तला कर चुकी थी। वो अक्सर ही इस बारे में अपनी माँ से सवाल करती तो वो उसे खामोश करवा देती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। जहान कुछ साल के लिए बाहर चला गया था। जब वो 5 साल बाद लौटा तो आज काफ़ी दिनों बाद सारे फैमिली वाले एक साथ में बैठे हुए थे। 15 साल खनसा, जो आज 5 साल बाद इस शख्स को देख रही थी, आज फिर इसकी आंखों के सामने वही रात घूमे जा रही थी। इस रात आखिरी दफ़ा उसने चांद को नशे की हालत में घर से निकलते हुए देखा था। आज 5 साल बाद वो सामने खड़े शख्स को देखे जा रही थी। आज भी उसे वैसा ही लग रहा था। 15 साल खनसा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ जहान के लिए नफरत थी। ज़ीशान साहब कहने लगे, देखो जहान बेटा, मेरे ख्याल से तुम काफ़ी हद तक
बदल चुके हो और अब तुम्हें एक दफ़ा फिर से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा तुम्हारी शादी किसी और लड़की से नहीं करवाई जाएगी, बल्कि अपनी खंसा से ही करवाई जाएगी। ये सुनना था कि खंसा ने एकदम से अपने ताया जान की तरफ देखा और अगले ही लम्हे इसने वलीद साहब की तरफ देखा। कहने लगी, बाबा जान, मेरी शादी। वो कहने लगे, खंसा बेटा खामोश रहो और आप कमरे में जाओ। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया और उसे कमरे में ले जाने का कहा। खंसा अपनी माँ के साथ कमरे में आई और कहने लगी, मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी जहान भाई के साथ। आपको पता है वो कितने जालिम हैं। वो नरमी से बोले जा रही थी। फरजाना बेगम कहने लगी, देखो मेरी जान, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जहान अब बदल चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा। फरजाना बेगम जानती थी कि वो कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकेंगी, ना ही वो अपनी बेटी के लिए किसी किस्म की कोई जद्दोजहद कर सकेंगी। इस वजह से वो खामोशी से उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। कंसा कहने लगी, मम्मा, मुझे नहीं करनी शादी जहान भाई के साथ। वो मुझे इतने ज़्यादा बड़े भी हैं और आपको पता है वो कितने बुरे हैं। और अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फरजाना बेगम कमरे से बाहर जा चुकी थी। घर में इन दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। वो नहीं जानती थी कि जहान कैसे शादी के लिए माना था, लेकिन आखिर वो दिन भी आ गया जब वो दुल्हन बनी जहान के पहलू में बैठी हुई थी और उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने मिनाज की वो हालत नजर आ रही थी। उसे यही लग रहा था कि एक दिन जहान इसकी भी वही हालत कर देगा। जहान कहने लगा, बाबा जान, मैं कंसा को इस घर में नहीं रखना चाहता, बल्कि रुखसत करके अपने फ्लैट में लेकर जाना चाहता हूँ। इसकी ये बात सुनकर वलीद साहब की पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो कहने लगे, क्यों बेटा, तुम इसे अपने साथ फ्लैट पर क्यों लेकर जाना चाहते हो? मैंने अपनी बेटी की शादी इस वजह से तुम्हारे साथ करवाई थी ताकि वो इस घर में रह जाए। वो कहने लगा, देखें चाचू जान, मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ और रिलैक्स रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करे। वो अजीब अंदाज में बोले जा रहा था। जीशान साहब भी खामोश हो गए और वलीद साहब भी भला जहान को क्या कह सकते थे, और वलीद साहब को कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। आज तो उन्हें पछतावा हो रहा था अपनी बेटी को उस शख्स के साथ ब्याहने पर, लेकिन वो खामोश हो गए। कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं ये उम्मीद तो रखूँगा कि तुम मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई अजियत और तकलीफ नहीं दोगे। जहान की पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो कहने लगा, चाचू जान, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी को कोई अजियत और तकलीफ दूंगा तो आप एक काम करें, अपनी बेटी को अपने पास ही रख लें। जहान की ऐसी बात सुनकर जीशान साहब कहने लगे, जहान बेटा, कुछ तमीज़ का भी इजारा कर लिया करो। उसी जगह पर वो कहने लगा, बाबा जान, जाहिर है अब मेरी बीवी है तो मैं अपनी मर्जी की जगह पर ही उसे रखूँगा ना। वो दोनों खामोश हो चुके थे। न जाने कितनी देर तक कंसा फरजाना बेगम के सीने से लगे रोती रही। वो नहीं जानती थी शादी क्या होती है। इससे तो शादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बस अब इतना पता था कि जहान के साथ रुखसत होकर उसके फ्लैट में जाएगी। न जाने कैसे इसकी माँ ने इन सब के लिए उसे मनाया था। जहान से लेकर अपने फ्लैट में आ चुका था। कंसा का दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो घबराते हुए कहने लगी, जहान भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे वापस मम्मा पापा के पास जाना है। वो आंखों में आंसू लिए बोले जा रही थी। उसकी यह बात सुनकर जहान ने गुस्से में इसके बाजू को दबोचा तो उसकी सिसकी निकली। कहने लगी, भाई आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद सुनकर वो गुस्से में उसे
लेकर कमरे में आए, जो कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। सारा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। इस कमरे को देखे जा रही थी। जहाँ मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ कि शोहर में और भाई में क्या फ़र्क होता है। ये कहकर कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया और घबराई जा रही थी। उसे जहान की हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जहान ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और कहने लगा, तुम बहुत छोटी हो, बहुत कम उम्र, शायद तुम तो शादी के तकाज़ों से वाकिफ़ भी नहीं हो, लेकिन क्या है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें बहुत जल्द ही इस बारे में समझा दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ बोले जा रहा था और खंसा को उससे खौफ महसूस होने लग गया था। वो घबराते हुए कहने लगी, क्या मतलब है, हम साथ में रहेंगे, हम मियाँ बीवी हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो निगाहें जो गायब बोले जा रही थी, वो कहने लगा, तुम्हें अभी मालूम नहीं है, मियाँ बीवी का रिश्ता तो वही मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था और खंसा को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले ही लम्हे वो उसकी एक एक करके ज्वेलरी उतारने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे जान के करीब हाथ उसके वजूद पर हरकत कर रहे थे, वो घबरा रही थी, उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जान ने अपना चेहरा इसके करीब किया, इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा, मेरी जान, मेरी गुर्बत में आकर ऐसा महसूस कर रही हो। इसकी बात सुनकर कुछ न जानने के बावजूद भी इसका दिल खौफ की वजह से कांपने लग गया था। वो तो शादी के तकाज़ों से वाकिफ़ ही नहीं थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि शादी क्या होती है। वो तो महज बच्चे जो कुछ नहीं जानती थी। जहान मुस्कुराता हुआ कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी मेहनाज आपी को मैंने क्यों मारा था। वो जिस तरह से बोले जा रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है। वो घबराते हुए कहने लगी, आप भी मेरे साथ वैसे ही करेंगे जैसा आपने मेहनाज आपी के साथ किया था। बस बाद में सर हिलाता हुआ वो कहने लगा, हाँ वैसा ही करूँगा, अगर तुम मुझे जल्द बच्चा पैदा करके नहीं दोगी। ये बात सुनकर अब की बार खंसा परेशान हुई थी। कहने लगी, वो तो मुझे नहीं पता इस बारे में। वो निगाहें झुकाए बोले जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स को क्या जवाब दे, जैसे वो उसे सवाल किए जा रहा था। अगले ही लम्हे वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करता हुआ एक गुस्ताखी कर चुका था और रोने लगी। कहने लगी, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। एक दफ़ा फिर से जब जान ने एक बार फिर अपने लब उसकी पेशानी पर रखे तो बढ़ाते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझसे दूर रहें, क्यों आप मेरे पास आ रहे हैं। डरते से सकते हुए बोले जा रही थी। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, इतनी सी गुर्बत पर तुम्हारी चीखें निकलने लग गई, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। मुझे तो बच्चा चाहिए, बस 15 साल बच्ची को बोले जा रहा था। वो घबरा रही थी। जान कहने लगा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बाप की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इसकी छोटी सी बेटी को मैं अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूँ, ताकि उनकी बेटी उनसे दूर ना जाए, इसके पास ही रह जाए। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी बेटी को किस जहन्नुम में धकेल रहे हैं। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें मेरे पल्लू से बांध दिया है। मैंने बहुत मना किया था कि वो छोटी बच्ची है, कभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे ताया जान है ना, तुम्हारे बाप को बहुत ज़्यादा शौक था तुम्हें मेरे पल्लू से बांधने का। अब मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जिस तरह बोले जा रहा था वो घबरा रही थी। नफ़ी में सारी लाते हुए कहने लगी कि जी आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं। वो कहने लगा, मेरी जान, फजूल बातें तो नहीं। यह कहकर इसके दुपट्टे को इसके वजूद से अलग किया तो वह घबरा कर कहने लगी,
بات میری ہے، پلیز ایسا مت کریں، ڈرتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن جہان بھلا کہاں اس کی باتیں سننے والا تھا۔ اس کی سر پر تہ دھیرے دھیرے نشے سوار ہونے لگ گیا تھا۔ ایک تو وہ کم عمر بچی تھی، اوپر سے وہ اس قدر حسین تھی، اوپر سے دلہن کے روپ میں جس طرح سجایا گیا تھا، وہ تو جہان کو مکمل طور پر بہکا چکی تھی۔ اور جیسے ہی جہان مزید اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، تو وہ جہان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے، جہان پلیز آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، ہنسا کی شادی جہان کے ساتھ کر کے، فرزانہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا تھا۔ ذیشان صاحب کہنے لگے، دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ جہان پہلے بہت زیادہ بے حس تھا، پہلے تو وہ بچہ تھا، لیکن اب کافی زیادہ سمجھدار ہو چکا ہے اور ہماری خنسا کو خوش بھی رکھے گا۔ جب کم عمر بیوی ملتی ہے تو مرد اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فرزانہ بیگم کو کہاں سکون مل رہا تھا، کہاں چین مل رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، نہ جانے وہ میری خنسا کا کیا حال کرے گا۔ فرزانہ بیگم کی بات سن کر ولید صاحب کے چہرے پر بالیں اتار ہوئے اور وہ غصے میں کہنے لگا، نہ جانے کیوں تم اتنا زیادہ وہم کرتی ہو، پہلے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہو، تم تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ صبح جب جہان کی آنکھ کھلی تو اس نے خنسا کو دیکھا تو وہ نیچے صوفے کے پاس فرش پر ایک کونے میں اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، گھٹنوں پر اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ جہان بیڈ سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے یہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تو کہنے لگا، خنسا یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا رات کو اس نے کتنی بری طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کیا تھا۔ خنسا نے نگاہیں اٹھا کر جہان کی طرف دیکھا اور ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہو چکی تھی۔ جہان کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم تو ابھی سے مجھ سے اتنا زیادہ خوف کھانے لگی، ابھی تو میں نے بہت ہی نرمی سے تمہارے ساتھ پیش آیا ہوں، اس کے باوجود بھی تم اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ گھبراتے ہوئے مزید اس سے پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی، پلیز خدا کے لیے مجھ سے دور رہیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے چیخنے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر جہان کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر لا کر اسے بیڈ پر پھینکا اور اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور یوں تم چیخنے چلانے لگ جاؤ، خبردار اگر تمہاری دوبارہ آواز نکلی۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو مزید اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، پلیز میرے پاس مت آئیے۔ وہ 15 سالہ بچی اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں بخش دوں گا؟ میری جان، مجھے تو ابھی تمہارے کم سن وجود سے بچہ پیدا کروانا ہے، مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اور بچے والی بات سن کر تو وہ مزید ڈر چکی تھی۔ رات جو اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ان سب نے تو اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ جہان مسکراتا ہوا کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں تمہارے ماما بابا کے پاس
जाने दूंगा। नहीं मेरी जान, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब भूल जाओ अपने माँ बाप को। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ जहान है, और जिसकी जिंदगी में जहान होता है उसकी जिंदगी में साया जहान होता है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो जिस तरह बोले जा रहा था वो जान चुकी थी कि यह जहान से वो अब नहीं बच पाएगी। वो कहने लगा, जो कुछ तुमने कल रात बर्दाश्त किया है ये तो तुम्हें हर रात बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर वो मजीद डर चुकी थी। नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे मेरे मामा पापा के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़। इसके सामने रोते हुए हाथ जोड़े जाओगे बोले जा रही थी। वो कहने लगा, ना तुम्हें इतना ज़्यादा सब कुछ सिखा दूंगा, तुम्हें हर चीज़ की समझ लग जाएगी। इसके बाद तुम अपने माँ बाप के पास जाने की भी जिद नहीं करोगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो शाबाश, अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे मामा पापा भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर। वो एक आंख दबाता होगा बोले जा रहा था। वो घबराए हुए जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी और बेसाख्ता ही उसके लोगों पर मुस्कुराहट बिखरी। वो जब नीचे आए तो सामने ही ज़ीशान साहब, वलीद साहब, फरजाना बेगम और उसकी ताई जान आ चुकी थी। उन्होंने टेबल पर नाश्ता लगाया। जैसे ही खंसा अपनी मामा को देखा था फौरन ही डरती हुई जाकर सीने से लग गई। कहने लगी, मामा मुझे इसके साथ नहीं रहना, प्लीज़ मामा मुझे वापस ले जाएं। तो हुए बोले जा रही थी और फरजाना बेगम खंसा की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी जान क्या हो गया है, क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो? वो आपके शौहर हैं। वो कहने लगी, मामा आपको पता है रात को उन्होंने क्या किया है? इससे पहले कि वो कुछ कहती फरजाना बेगम ने उसे आंखें दिखाईं, जिसके बाद वो खामोश हो गई। फरजाना बेगम कहने लगी, देखो किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं। डरते हुए कहने लगी, मामा ये बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे साथ पता है बहुत बुरा किया है। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वो खूनखार निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि खंसा किसी किस्म की कोई ऐसी बात करे जिसकी वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। वो बार बार खंसा को खामोश रहने के लिए कह रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे खंसा सबके सामने वो बात कह गई जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। फरजाना बेगम भी अब की बार गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। कहने लगी, खंसा खुदा के लिए खामोश हो जाओ। और गोया जहान कितना तन बदन में आग लग चुकी थी। जब फैमिली वाले चले गए तो गुस्से में खंसा का बाजू पकड़े उसे कमरे की तरफ ले जा रहा था। वो घबराते हुए कहने लगी, छोड़े जहान प्लीज़, मुझे दर्द हो रही है। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जहान से। जहान इसकी कलाई पकड़ी, वहाँ से इसकी कलाई लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में उसे कमरे में लेकर आया और लाकर उसे बेड पर फेंका। देख के वो घबरा चुकी थी। जहान गुस्से में कहने लगा, तुम्हें किसने बोला ये तुम अपने कमरे की बातें अपनी माँ के सामने बयान करो? ये कहकर गुस्से में उसके बालों से पकड़कर उसे करीब करके गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि मैंने तुम्हें रात को तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत नहीं दी थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। वो खंसा की मासूमियत, उसके बचपने की परवाह किए बगैर उस पर चिल्लाया जा रहा था, इस बात से अनजान कि वो तो बच्ची थी। उसे जो ठीक लगा उसने वो किया। लेकिन अब की बार उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जहान किस कदर पागल है, किस कदर जुनूनी इंसान है। वो जहान भी नहीं खिसकी थी, यूँ थी जैसे काटा तो बदन में लहू ना हो। रात वलीमे के फंक्शन पे अपने माँ बाप का भी देखते ही इसने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया था, न रोई थी, बल्कि किसी बेजान पुतले की तरह वहीं पर बैठी रही थी। और ये देखकर फरजाना बेगम को कुछ और हो रहा था, अपनी बेटी को यूँ खामोश देखकर।
वो इसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो। उसने आंसू से भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, मम्मा मेरी शादी की उम्र तो नहीं थी, ये सब कुछ किया है। डरते डरते बोली तो फरजाना बेगम ने उसके आंसू साफ करते हुए उसके पेशानी पर बोसा दिया और कहने लगी, देखो मेरी जान, जैसे शौहर बीवी को रखता है वैसे ही बीवी को रहना पड़ता है। तुमने शादी के बाद देखा नहीं था कि तुम्हारे बाबा जान जैसे मुझे रखते थे वैसे ही मैं रहती हूँ, ऐसे ही तुम्हें भी शादी के बाद रहना पड़ेगा, जैसे जहान चाहेगा। फरजाना बेगम बस उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और वो फरजाना बेगम की बातों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। एक रात में उसने गुस्सा कंसा के दिमाग में वो सब कुछ भी डाल दिया था जो कुछ वो नहीं जानती थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं गायब हो चुकी थी, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद 2-3 दिन तक जहान इसके करीब नहीं आया था, न जाने कहाँ मसरूफ होता था और वो सारा दिन अकेली घर में डरती रहती थी। रात जब वो घर में दाखिल हुआ तो बहुत नशे की हालत में था। उसे नशे की हालत में देखकर कंसा के सामने वो रात घूमने लग गई। जब वो नशे की हालत में आया था और सीधा वो महनाज के पास गया था, उसका दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। वो बहुत डरने लगी थी। वो रात कभी नहीं भूली थी। जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ तो इर्द गिर्द कंसा को देखने लगा, जबकि कंसा तो पहले ही लाउंज में मौजूद थी। जल्दी से कमरे में आई तो जहान कहने लगा, तुम कहाँ थी, बाहर से आ रही हो ना, बाहर किससे मिलने गई थी। जहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था। वो घबराते हुए कहने लगी, नहीं जहान, मैं तो किसी से नहीं मिलने गई थी। वो बच्चों की तरह मासूमियत से बोले जा रही थी। उसे खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं जहान भी उसके साथ वो सब कुछ ना करे जो कुछ उसने महनाज के साथ किया था। लेकिन जहान का बदलता हुआ रूप देखकर वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि अब इसकी भी वही हालत होने वाली है जो आज से 5 साल पहले इसने महनाज की थी। अगले ही लम्हे वो उसे बालों से पकड़ता हुआ अपने करीब करता हुआ कहने लगा, तुम किससे मिलने गई थी, शाबाश मुझे साफ साफ बताओ। वो अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इतनी जोर से जान इसके बालों को खींचा हुआ था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी इसकी गर्दन टूट जाएगी। वो रोते सिसकते हुए कहने लगी, जहान मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन टूट जाएगी। उसे सिसकते हुए बोले जा रही थी, लेकिन जहान तो पागल हुआ बैठा था। न जाने ये वहम उसे क्यों हो गया था कि वो किसी से मिलने गई थी। वो कहने लगी, मैं बाहर थी, मैं किसी से भी मिलने नहीं गई थी जहान, वो चिल्लाते हुए बोली। लेकिन अगले ही लम्हे जहान उसे खुद से दूर धक्का दे चुका था। उसका सर टेबल पर लगा था। हर चीज़ उसे अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जब बाहर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर से उसे अपने बाबा की आवाज़ आ रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, बाबा इस दरिंदे से मुझे बचाएं। और बाहर खड़े हुए वलीद साहब को ये महसूस हो रहा था जैसे एक दफ़ा फिर वही माजी दोहराया जा रहा है। उन्होंने गुस्से में कमरे का दरवाजे को धक्का लगाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला तो उन्होंने जहान को कंसा से दूर धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगे, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की, इस पर किसी किस्म के जुल्म करने की कोशिश की, वो महनाज की तरह लावारिस नहीं है। वो ऐसी नहीं कि इसके माँ बाप नहीं। खबरदार, जो तुमने अपने लिए बेटी को दोबारा छूने की कोशिश की। अपने बाप के सीने से लगी, रोने लगी, पूरी की पूरी कँपा रही थी। इसका पूरा वजूद काँप रहा था। रोते हुए कहने लगी, बाबा बाबा मुझे इस शख्स से बचा लें, बाबा ये मुझे मार देगा।
रोते सिसकते हुए बोले जा रही थी। न जाने क्यों वलीद साहब का दिल घबरा रहा था। तो वो खौफ से मिलने आ चुके थे और अब उन्हें अंदाजा हो रहा था कि उनका दिल क्यों घबरा रहा था। वो गुस्से में कहने लगे, जहान, मैं एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो। तुम नहीं बदल सकते और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। वो गुस्से में जहान से इनके हाथ से खंसा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खबरदार चचा जान, जो आपने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की, मैं कभी भी अपनी बीवी वापस आपके पास नहीं भेजूंगा। वो मेरी बीवी है, भूल जाएंगी, आपकी बेटी है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था। अगले ही लम्हे वलीद साहब ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया और कहने लगे, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ने लगे। जब जहान ने गुस्से में उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरे। इनका सर टेबल पर लगा और खून बहने लग गया था। वह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती हुई अपने बाबा की तरफ गई और कहने लगी, बाबा बाबा। जानी, वो रोते हुए वलीद साहब की गाल थपथपा रही थी। वह बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहे थे। अब की बार जहान का भी सारा नशा उतर चुका था। वह वलीद साहब के पास आकर बैठ गए। कहने लगे, चाचू जान, आंखें खोलें। चाचू जान, क्या हो गया है? वो भी बेहोशी की हालत में चले गए थे। वो फौरन ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था और वो नफरत भरी निगाहों से जहान की तरफ देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर में ज़ीशान साहब और बाकी सारे घर वाले भी आ चुके थे। ज़ीशान साहब कहने लगे, जहान, क्या हुआ है इन्हें? इससे पहले कि खंसा कुछ कहती, वो घबराता हुआ कहने लगा, वो चाचू जान सीढ़ियों से गिर चुके थे, इसी वजह से चोट लग गई है। इससे पहले कि खंसा कुछ बोलती, जहान ने उसे आंखें दिखाई, जिसके बाद वो खामोश हो गई थी, सहम गई थी। जहान का यूं देखना ही उसे खौफ में मुब्तला कर देता था। काफ़ी वक्त कर वो कहने लगी, देखें, इनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। जहान कहने लगा, थोड़ी सी तो चोट लगी है, इतनी ज़्यादा तो चोट नहीं लगी। ये क्या बात हुई? जहान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। कहने लगे, देखें, बज़ाहिर वो थोड़ी सी चोट है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ का कोना इनके दिमाग में लगा है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में खून जम चुका है और उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती हुई वहाँ से जा चुकी थी और जहान को अब ठीक से परेशानी लाक हुई थी। फरजाना बेगम ने रो रो कर अपनी बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। उनके पहलू में बैठी हुई खंसा मुसलसल रोए जा रही थी। रोते हुए कहने लगी, मामा, मैं नाज़ाबी की तरह बाबा भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। पापा भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे। वो रोते हुए एक ही बात बोले जा रही थी और फरजाना बेगम को समझ नहीं आ रही थी, आज इतने साल बाद से महनाज क्यों याद आ रही है। वो महनाज का बार बार जिक्र क्यों कर रही थी। दाल में कुछ काला लग रहा था। वो कहती, खंसा बेटा, क्या हुआ है आपको? आपके बाबा को प्लीज़ मुझे बताएं। उन्होंने जब ये बात खंसा से पूछी तो जहान ने फौरन ही मुड़कर खंसा की तरफ देखा और उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगा। खंसा बार बार सामने खड़े जहान की तरफ देखे जा रही थी। वो कभी भी जहान के सामने इस हकीकत को बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन वो खामोश हो चुकी थी और उसने अपने बाबा को भी खो दिया महनाज की तरह। आज उसने जहान की वजह से एक और शख्स को मरते हुए देखा था। रो रो कर इसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। जहान मुसलसल खंसा की तरफ देखे जा रहा था और आज जहान को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यह बात सिर्फ वही जानता था कि इसके चचा की जान
सिर्फ इसकी वजह से गई है। कंसा को मजीद जहान से नफरत होने लग गई थी। रात का वक्त आ गया था। वो कमरे में बैठी हुई थी। जब जहान कमरे में दाखिल हुआ, उसे इस कदर खामोश बैठा हुआ देखकर धीरे धीरे चलता हुआ इसके करीब आया और कहने लगा, कंसा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कंसा ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ जी बोले, क्या बात करनी है। वो कहने लगा, देखो कंसा, मेरे ख्याल से तुम्हें आगे एडमिशन लेना चाहिए। तुम्हें अपनी स्टडी मुकम्मल करनी चाहिए। आगे तुम क्या करना चाहती हो। इसकी बात सुनकर उसने निगाहें उठाकर सामने बैठे जहान की तरफ देखा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जहान के लिए नफरत थी। आज किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। वो कहने लगी, जहान, मुझे वकील बनना है। न जाने क्यों सोचते हुए उसने ये बात की। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, वाह भाई, ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। बहुत अच्छा तुमने सोचा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा और कभी तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं करूंगा। वो नॉर्मल अंदाज में बोले जा रहा था और ये देखकर कंसा को मजीद ऐसे नफरत हुई थी। इतना कुछ करने के बाद अब उसे ये एहसास हुआ था कि इसने कितना गलत किया था, लेकिन कंसा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी स्टडी शुरू कर दी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। इसी दौरान कंसा को अल्लाह ने खूबसूरत से बेटे से नवाजा था और उसका ख्याल भी जहान ही रखता था। लेकिन जहान को इतने साल गुजरने के बावजूद भी कभी कंसा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आई थी। जबकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था, वो टूट कर चाहने लगा था। एक तो वो कम उम्र थी, ऊपर से बहुत हसीन थी और इस वजह से ही जहान उससे मोहब्बत करने लगा था। वो उसे किसी किस्म की कोई अजियत और तकलीफ नहीं देता था। रात के वक्त अचानक ही रोहान के रोने से की आँख खुल चुकी थी। उसने आंखें खोल कर देखा तो सारे कमरे में टहलता हुआ रोहान उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। कंसा ने उठकर जहान के हाथ से रोहान को पकड़ लिया और कहने लगी, इधर मुझे दे। जहान कहने लगा, नहीं, तुम शायद बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी थे तो इस वजह से तुम इसकी बात सुनकर कंसा कहने लगी, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा तुम जैसा हो या तुम्हारी गुर्बत में रहे। इसकी बात सुनकर जहान ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो नफरत भरी निगाहों से मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रही थी। वो कहने लगा, कंसा, क्या हो गया है। जितना वो तुम्हारा बेटा है उतना ही मेरा भी है। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ये तुम्हारा बेटा है, ये सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह हो। वो गुस्से में बोली थी। वो कहने लगा, क्यों नहीं चाहती, और खबरदार जो तुमने ये कहने की कोशिश की कि ये मेरा नहीं है। कंसा, मैंने इतने सालों में कभी तुम्हें किसी किस्म की अजियत और तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसके बावजूद तुम्हारा ऐसा रवैया देखने को मिलता है। और अपने बेटे का उठाती हुई कहने लगी, क्योंकि मुझे आपसे नफरत है। कभी मुझे आपसे मोहब्बत हुई ही नहीं। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहान से मोहब्बत करने लग जाऊँ तो मेरी आंखों में जहान का वो रूप आ जाता है। जब मैं अपनी आंखों के सामने जहान को नमाज को मारते हुए देखा था और जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को ऐसी हालत में देखा था, वो कितनी अजियत तकलीफ में थे। ये चीज़ कभी भी मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करने देगी। इस वजह से मुझे आपसे नफरत होती है। जहान, मैं हमेशा आपसे नफरत करूँगी। इसकी ये बात सुनकर जहान बिल्कुल खामोश हो चुका था और वो गुस्से में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी। जहान धीरे धीरे चलता हुआ उसके कदमों में आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम मुझे माफ़ करो, नहीं करोगी। उसने फौरन ही अपने कदमों को पीछे कर लिया। कहने लगी, जहान, खुदा के लिए दोबारा मेरे कदमों में आकर बैठने की ज़रूरत नहीं है।
میں نے ایک دفعہ آپ کو بول دیا ہے کہ کبھی آپ کے معاف نہیں کروں گی، تو بس ہو گیا کہ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے جہان کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز خدا کے لیے دوبارہ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ اسے دور ہو چکا تھا، کہنے لگا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں جہان، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ سب کو معلوم ہے چچا جان کی جان میری وجہ سے گئی تھی۔ ہاں ان کا میں قاتل ہوں، بتاؤ مجھے کیا سزا دینی ہے۔ وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کرو۔ میں کبھی بھی تمہارا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ رو دھونے کو تھا اور خنسا عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پوری طرح رونے لگی تھی اور جہان اس سے دور چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جہان نے اسے دور دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ خنسا جیسے ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تو سامنے گھر میں اس کی مما آئی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی مما آپ کب آئی ہیں؟ فرزانہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی بس تھوڑی دیر پہلے ہی جہان کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی اچھا جہان جلدی واپس آ گئے، کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں بس مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے آفس میں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی اچھا مما روحان کہاں ہے؟ وہ جان کے ساتھ ہی کر چلے گئے ہیں، ہم اس کے بغیر نہیں رہتے۔ کہنے لگی ہاں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خنسا تھک گئی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ اسے تنگ کرے گا، اس وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ جہان تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خنسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی تم نے ابھی تک جہان کو معاف نہیں کیا، تمہیں معلوم ہے وہ کتنا شرمندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں جہان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ نہ مہناز آپی کو انہوں نے جان بوجھ کے مارا تھا، نہ ہی انہوں نے بابا کی جان لی تھی جان بوجھ کر، ان سے غلطی میں ہوا تھا۔ لیکن مما اس کے باوجود بھی میں جہان کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی مما بے شک مجھے تو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی مما، میں وہ نہیں بھولی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے وہ عورتیں اپنے شوہروں کو معاف کر دیتی ہیں جو اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دینے کے بعد تھوڑی سی محبت جتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتی ہیں۔ اس بات کی سن کر فرزانہ کہنے لگی اس نے تم سے تھوڑی بہت محبت نہیں جتائی، اس نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ محبت سے جتائی ہے۔ جہان کے علاوہ شاید تمہارے لیے کوئی اچھا مرد ثابت نہ ہوتا، اچھا شوہر ثابت نہ ہوتا۔ جہان تمہارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے تو اس نے ہر جگہ تمہارا ساتھ دیا ہے، بیٹا تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ڈرتے ہوئے کہنے لگی مما میں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی دیکھو موت برحق ہوتی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پر آ جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس نے اسی ٹائم پر آنا ہوتا ہے۔ بیٹا تم تو انسان ہو، تمہیں تو معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنا ہے تمہارے بس میں ہے۔ دیکھو شاید اسے خدا نے بھی معاف کر دیا ہو لیکن تم تو ابھی تک اسے معاف نہیں کر سکی۔ وہ کہنے لگی مما آپ کیسے کہہ سکتی ہیں خدا نے انہیں معاف کر دیا ہوگا، کتنی انہوں نے ہمیں اذیت اور تکلیف دی، اس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے؟ لیکن مما مجھے نہیں اتنی ہمت کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ وہ کہنے لگی بیٹا ایک دفعہ تم سوچو تو صحیح، تم اسے معاف کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں معاف کرنا ہوگا، وہ تمہارا شوہر ہے، تم صرف اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ بیٹا
کیسے نہیں تم اسے معاف کر سکتی؟ اتنے سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی تمہارا دل نہیں دکھایا، تمہیں اذیت اور تکلیف دینے والی باتیں نہیں کی۔ وہ جب ایک چیز سے توبہ کر چکا ہے، وہ دوبارہ اس کی طرف نہیں جا رہا، تو پھر تم کیوں نہیں اسے معاف کر سکتی؟ ایک انسان کا ماضی بھول جانا چاہیے۔ بیٹا اسے سمجھانے والے انداز میں بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، اس وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور گیا، میں نے اپنے شوہر کو کھویا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ میں نے اسے خدا کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا؟ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، ماما میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے دیکھا ہے، وہ روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ اس نے کبھی تم سے ایسے معافی نہیں مانگی؟ اور اگلے ہی لمحے خنسا کو وہ لمحہ یاد آ چکا تھا جب وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ماما کیا وہ سچ میں بدل چکے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں بدلے۔ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں اتنے سالوں میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں بدلا؟ کوئی اتنا لمبا ڈرامہ نہیں رچا سکتا۔ بیٹا وہ بدل چکا ہے، میں صرف یہی تمہیں آج سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی اور اس کے دل نے ابھی یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ سچ میں بدل چکا ہے۔ جب اتنے سالوں میں اس نے کسی قسم کی کوئی تکلیف، اذیت نہیں دی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ہر امید پر پورا اتر رہا ہے، تو وہ کیسے رہے اسے معاف نہیں کر سکتی؟ رات کے وقت جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے روحان کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو سارے لاؤنج کی لائٹس آف تھی۔ وہ کہنے لگا، خنسا کہاں ہو؟ کیوں سارے گھر کی لائٹیں آف کی ہوئی ہیں؟ وہ اسے پکار رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارے لاؤنج کی لائٹس آن ہو گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آنے میں اتنی دیر لگا دی ہے، میں نے کہا کہ لائٹس ہی آف کر دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور یہ خنسا کا روپ دیکھ کر بالکل نیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ خنسا اس کے ہاتھ سے روحان کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے فریش ہو کر آئیں، میں آپ کے لیے ساری آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ مسلسل خنسا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، بالکل بھی نہیں، خواب نہیں دیکھ رہے، بالکل حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، روحان کو اٹھا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فریش ہو کر آیا اور دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ روم میں جا چکا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لیے چائے والا کپ لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے والا کپ تھا۔ وہ کہنے لگا، خنسا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے کیا؟ خنسا کہنے لگی، جب کوئی شخص خود کو اتنا بدل سکتا ہے تو پھر میں کیسے نہیں معاف کر سکتی؟ اس کے منہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی صاف کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگی، بھئی اس میں اب شکریہ والی بات کیا ہے؟ بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہو جائے جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ مسکرا دیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، انشاءاللہ میں آپ کو مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسے لگی اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔